Very warm wishes to all. I, Dr. Sarita, with Dr. Chandrasekhar Yadav, sir, Assistant Professor, IIMT College of Science and Technology, B.Ed Department, welcome you all this live alumni. I extend my warm welcome to the Managing Committee, worthy faculty, and other our dear students with alumni, and each one of you who has connected with us. Today, we are going to connect with our B.Ed alumni. Among us, we have Mr. Ronnie Gautam, PGT Political Science in PM Shri Kendriya Vidyalaya, Delhi, and Ms. Gautam Sharma, TGT Hindi in Astor Public School, Greater Noida. Before moving forward with this program, let me brief you about the vision and work culture of IIMT. IIMT Group of Colleges established in the year 1994. Since its inception, IIMT as a group has grown by leaps and bounds and achieved exemplary recognition from the industry and academy. At Just mute करो. IIMT, we are committed to providing a value-driven culture and creating a Audio. professional environment. As a large and diversified group, IIMT imparts knowledge in engineering, management, education, law, pharmacy, and so on. It has highly qualified and experienced faculty members in their respective functional areas. IIMT boasts of having more than 8,000 students in various courses in 6 colleges. The educational group has been dedicated to providing quality professional education through well accredited courses, seminars, conferences, guest lectures, industrial visits, and excellent academic facilities. We believe in all round of development of students with a strong foundation based on pillars of knowledge, intellect, and values. The programs are structured to keep pace with the present dynamic and globalized scenario, meeting the requirements of industry and education. We are dedicated to delivering excellence in our academic programs. Now, I'm going to brief you all about B.Ed Department, IIMT College of Science and Technology, Greater Noida. Came into existence after receiving recognition from NCTE for offering teacher education course to a unit of 100 B.Ed students during the academic session 2006-7. The college is situated at plot number 20, Knowledge Park 3, Greater Noida. It is recognized by NCTE and affiliated to CCS University, Meerut. It is a self-financed college managed by 7 Rotarians, all of whom are devoted to the service of humanity in the society. The college is established with a view to mold and shapes the prospective teachers to be competent to transact the curricular experiences to the students of secondary schools and to produce quality teachers with great values so that they could contribute in tasks of nation building. This objective is being achieved by the college with the help of highly qualified teaching faculties. It is academically governed by CCS University Meerut. The college has a rich library with the latest reading research and reference material. Besides enriching the knowledge of teachers or students, the college has a psychological laboratory, an education technology laboratory, language laboratory, physical science laboratory, mathematics laboratory, chemistry and biology laboratory, art and craft laboratory, sports room, music room, seminar hall, conference hall, multi-purpose hall, and open space for different purposes. So now let's start a program with the interaction of our dear alumni. So I would like to ask Mr. Ronnie Gautam to introduce himself. Mr. Ronnie Gautam, it's over to you. Good morning, sir. Good morning, ma'am, and good morning, all of you. My name is Ronnie Gautam. I I passed. I qualified B.Ed exams. B.Ed from IIMT in session 2019-21. अब वो कोविड का सेशन था. बाकी अभी प्रेजेंट में मैं केंद्र PM श्री केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी में एज ए PGT पॉलिटिकल साइंस वर्किंग हूँ. बेसिकली कॉलेज का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा काफ़ी अच्छा रहा. 2019 to 21 सेशन. हमारा सेशन ज़्यादा लंबा नहीं चला था रेगुलर ड्यू टू कोविड. 6 to 8 month
हम रेगुलर 4-5 मंथ हम रेगुलर गए थे, लेकिन उस 5 मंथ में हमने रेगुलर कॉलेज में जाकर जो सीखा, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था हमारा। अ, बाकी बेसिकली यहाँ से एक मिनट सर, माइक इशू आ रहा है। हम्म, बाकी 2019 का जब हमारा सेशन शुरू हुआ हमारा ओरिएंटेशन डे से। फर्स्ट डे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आए थे, बट ओरिएंटेशन में संगीता मैम, चंद्रशेखर सर, मुक्ता मैम एंड होता सर, बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। रेगुलर थ्योरेटिकल स्टडीज से हम कॉलेजेस से मास्टर्स करने के बाद बीएड के लिए गए, प्रोफेशनल कोर्स में गए। प्रोफेशनल कोर्स में जब गए तो काफ़ी चीज़ें चेंज मिली कि लर्निंग्स कैसे होती है। पहले दिन से हमारी लर्निंग स्टार्ट हो गई। पहले दिन जब हम क्लास में एंट्री की हमने, जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो होता सर की क्लास थी, जो डायरेक्टर थे बीएड कोर्स के। तो सर ने पहले दिन ही क्लास स्टार्ट कर दी प्रॉपरली, प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल पार्ट कुछ नहीं था, बट सर क्लास में आए तो फिर सर ने एक स्टूडेंट को खड़ा किया। सर ने बोला कि आप जाइए, आप क्लास में एंट्री कीजिए। अब कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा और एज ए टीचर एंट्री करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। नॉर्मल टीचर, एज ए नॉर्मल स्टूडेंट हम एंट्री की हमने। एंट्री के बाद फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। फिर सर ने बोला फिर से जाइए, फिर आइए। तो ये फर्स्ट डे से जो एक्सपीरियंस हमें मिला बीएड कोर्स में, वो अलग ही एक्सपीरियंस था। प्रेजेंटली बीएड कोर्स के टाइम पर ही गाइडेंस, टीचर्स का गाइडेंस एंड नॉलेज जो हमारे काम आज तक आती है प्रॉपरली, हमारे सब्जेक्ट से लेकर प्रॉपर हर जो सब्जेक्ट है वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आते हैं प्रॉपरली। और टीचिंग में भी आज भी जो भी मैंने बीएड में सीखा, वो आज मैं उन स्किल्स को आज यूज करता हूँ स्टूडेंट्स के सामने। तो उसका काफी बेनिफिट मिलता है। आप जब एज ए स्टूडेंट अभी आप बीएड कोर्स में हैं, तो उसमें और एज ए टीचर माइंडसेट बनाने में काफी डिफरेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोचिंग चलाते होंगे, और कोचिंग करते। जी सर। रोनी, एक प्रश्न है इसमें कि हाउ टू यूज टीचिंग स्किल इन बीएड कोर्स। जो हमारा बीएड का कोर्स है या बीएड स्टूडेंट के लिए जो टीचिंग स्किल डिफरेंट बताई गई है, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब अप्रोप्रिएट उसका तरीका क्या है। जैसे जो डिफरेंट स्किल बताई गई है, चाहे सेट इंडक्शन की हम बात करें, चाहे एक्सप्लेनिंग स्किल की बात करें, ब्लैक बोर्ड राइटिंग की बात करें, तो जो डिफरेंट टीचिंग स्किल है उसका हम बीएड स्टूडेंट के लिए या कोर्स में हम कैसे यूज करते हैं। तो जितनी भी स्किल जैसे आप हमें देखते माइक्रो हैं टीचिंग में उसका। सिखाई जाती है, हाँ, हम्म। जो भी स्किल्स हमें माइक्रो टीचिंग में सिखाई जाती है। अब माइक्रो टीचिंग में हम्म। जब हम स्किल सीखते हैं तो हम पहले माइक्रो टीचिंग में हमारे 5 मिनट के प्लान होते हैं, 5-5 मिनट मिला के 35 मिनट्स हमारे बनते हैं। हर स्किल का अपना एक काम होता है। क्लास में एंट्री से आपकी स्किल स्टार्ट हो जाती है। क्लास में जब एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ एक पॉजिटिव ओरा बनाना है। साथ के साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ आपको सबसे पहले आपकी स्किल का यूज होता है ब्लैक बोर्ड स्किल का। हम्म। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, फर्स्टली आपको क्लास में जाकर ये जरूर नोटिस करना है कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा है तो जो स्किल्स हमें ब्लैक बोर्ड स्किल में सीखने को मिलती है, प्रॉपर डेट, टाइम, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट में टॉपिक, टॉपिक में सब टॉपिक जो आप पढ़ाने वाले, पहले टॉपिक लिखना है। टॉपिक के बाद टॉपिक भी नहीं लिखना है, पहले आपको सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। फिर आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन कैसे होगा? इंट्रोडक्शन बेसिकली अगर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट है, अगर हमारा पुराना चैप्टर पीछे चल रहा है तो उसकी फिर तो हम चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, फिर सब टॉपिक के लिए वेट करेंगे। हम्म। बट अगर हमारा चैप्टर न्यू स्टार्ट होने वाला है तो न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें डिफरेंट एग्जाम्पल से, जो स्टूडेंट्स के आसपास के एग्जाम्पल हो, जिससे स्टूडेंट बेस्ट समझ सके। लाइक अगर मान लो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाना है और हमें पढ़ाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को बताना है। तो 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट बताएंगे क्या है,
तो वो शायद अभी आपसे सुना और जैसे ही आप क्लास से गए भूल गए। बट उनकी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या वैल्यूज है, कि घर में कौन रूल बनाता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फुटबॉल का ग्राउंड है, वहां कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो रेड कार्ड मिल जाता है, येलो कार्ड मिल जाता है, या बैन लग जाता है। इसी तरह से अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे हम किसी भी गेम में, तो रूल्स को तो गेम अच्छे से नहीं चल पाएगा। बट जब हम इसी तरह से किसी कंट्री को चलाने के लिए या किसी स्टेट को चलाने के लिए जब हम चलाना होगा, तो हमें वहां भी रूल्स एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और जो वायलेट करेगा उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। तो यही एक एग्जाम्पल हो सकता है। इस तरीके से डिफरेंट सबके माइंड में, मेरे माइंड में जी फुटबॉल का ग्राउंड आया, किसी के माइंड में घर के बात रूल एंड सुन रही रेगुलेशंस थी, आ वो सकते चल हैं। रही है मीटिंग। घर के रूल एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सामने आ जाती है। लाइक अगर देखा जाए तो जैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस की एग्जांपल ज्यादा ले सकता हूँ, बाकी भी एग्जांपल टॉपिक्स काफी सारे होते हैं। जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स ही पढ़ानी है, तो होम मिनिस्ट्री में हम अपनी मदर को शो कर देते हैं, उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट के रूप में ग्रैंडफादर को शो कर देते हैं कि वो नॉमिनल प्रेसिडेंट रह जाते हैं। तो इसी तरीके से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन में एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, जब तक बच्चों को समझ में ना आए, मैक्सिमम स्टूडेंट को, और क्लास में इंट्रोडक्शन के साथ ही क्लास की जो भी स्ट्रेंथ होगी उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि मैक्सिमम बच्चे आपके साथ टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करें। ये था इंट्रोडक्शन स्किल। इसके बाद एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन आपको क्लास के अकॉर्डिंग होगा बेसिकली। हम 6th क्लास में अगर 12th क्लास की तरह लेक्चर देने चल दिए, तो शायद कुछ हम पढ़ा ही ना पाए बच्चों को। फिर ना ही स्टूडेंट समझेंगे, ना ही हम समझ पाएंगे स्टूडेंट्स को। एंड हमें हर क्लास और हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही हमें लर्निंग करनी है। टीचिंग के साथ लर्निंग भी होनी जरूरी है, क्योंकि जब क्लास 6th में आप फर्स्ट टाइम पढ़ाएंगे और सेकंड टाइम पढ़ेंगे, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। क्लास 12th में आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पढ़ेंगे, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि बच्चों का माइंडसेट कैसा है, आपको किस तरीके से मैनेज करना है। अगर आपको एक्टिविटी करानी है तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो एनईपी भी कहती है कि मैक्सिमम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें। और गीता अभी जो आ चुकी है, सरिता में गीता के विषय में इंट्रो कर दिया था आपने ना। जी अ, आज मैं कर- मी- जी आवाज, गीता आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट देखना, म्यूट है कि नहीं आपका, अनम्यूट कर दो आप। सुनो अनम्यूट म्यूट कर दो, माइक आपके ऑफ है। जी जी। गुड ठीक ठीक, आफ्टरनून अब ऑल ठीक ऑफ है। यू। हाँ गुड आफ्टरनून सर, मैम म्यूट मतलब म्यूट ही अनम्यूट है। जी। मैंने जब बीएड स्टार्ट किया था, जबकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं बीएड करूंगी, क्योंकि बीएड जो था मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। कॉलेज टाइम छोड़े हुए मुझे लगभग 10 साल हो गए थे, और मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये पढ़ाई की जो जर्नी है वापस से मैं कैसे शुरू करूंगी। मैंने ठान तो ली थी कि मुझे बीएड करना है, लेकिन मेरे हाथ पांव फूलने लग गए कि मैं कैसे करूंगी। फिर उस समय चंद्रशेखर सर और एक सर थे, क्या नाम था उनका, त्रिपुरेश सर। ये दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आगे बढ़ के फिर मैंने, क्योंकि मैं, ये मुझे पता था कि मैं जो बीएड कर रही हूँ उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब तो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाली है ना। तो मैं हाथ पांव मार रही थी प्राइवेट जॉब के लिए। कहते हैं ना, डूबते के लिए तिनका सहारा जरूरी होता है, और वो तिनका मैंने पकड़ के रखा। और 1 साल का कोर्स था। फिर मैंने रेगुलर टीचिंग छोड़ दी। मैंने मेरे 8 इयर्स के करियर, मतलब मैं नॉन बीएड थी, 8 साल पढ़ाया मैंने नॉन बीएड। उसके बाद मैंने बीएड स्टार्ट किया, और मुझे हर दिन लगता था कि नहीं, मैं ये चीज मिस कर रही हूँ।
और मुझे हर दिन एक नई चीज सीखने को मिलती थी, और मेरे अंदर एक, कहते हैं ना, एक एनर्जी, एक ऊर्जा मतलब आती जाती थी। और मैं आपको बताऊं, मैं सच बता रही हूँ, उस समय में उस क्लास में हर स्टूडेंट के बीच में सबसे मतलब सारे जो स्टूडेंट थे वो मेरे से कम उम्र के थे, और उस समय ये और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन मैंने उम्मीद और अपना जो मेरा जो विश्वास था उसको मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, और पहले तो मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन मैंने किया। और सारे टीचर्स, खास करके चंद्रशेखर और चंद्रशेखर सर और त्रिपुरेश सर, ये दो सर बहुत हेल्प किया इन्होंने। और हर समय उन्होंने बहुत गाइड किया। और कई बार मैं थोड़ा सा दुखी भी हो जाती थी कि मैं, ये बच्चे हैं मेरे सामने बैठे हुए, जो मतलब छोटे बच्चे हैं, इनके साथ मैं कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन सर लोगों ने ही मुझे गाइड किया, और मैं पूरी हिम्मत से, पूरे विश्वास के साथ करती गई। और फर्स्ट डे जो हमारा ओरिएंटेशन डे था, वो तो उसका तो कहना ही क्या है। ओरिएंटेशन डे वाले दिन ही मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि मैंने उस दिन सभी जो भी हमारे फैकल्टीज थे, उन लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। और बहुत अच्छा मतलब, सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो अपना एक छाप छोड़ ही दी थी। अब चंद्रशेखर सर बताएंगे कि मैंने अपना क्या छाप छोड़ा फर्स्ट डे। तो उस दिन भी सभी, मुझे ऐसा लगता है कि सारे टीचर्स मुझसे बहुत इम्प्रेस थे। और मैं यही चाहती थी कि मैं कभी भी मेरा जो नेगेटिव जो पार्ट है, और मैं सभी से कहती हूँ कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, हमें उसको कोशिश करना चाहिए। हम तो पूरा 100% नहीं दे सकते, लेकिन हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया है। और यही पॉजिटिव थिंकिंग आपको आगे बढ़ने में आपको हेल्प करता है। और मैं बता रही हूँ, मेरी पूरी टीचिंग में आज, जब फर्स्ट डे हम टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल गए थे, वहां एकदम से त्रिपुरेश सर ने छूटते ही मुझे बोल दिया, गीता तुम स्टोरी सुना दो बच्चों को। 1 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि ठीक है, मैंने टीचिंग किया है, बट एकदम से उन्होंने बोला। और फिर मैं मतलब, मुझे मन में मैंने सोचा कि सर ने मुझ पे विश्वास करके मुझे वो मौका दिया है, तो मैं इस मौके को हाथ से जाने ना दूं। और उस दिन मैंने टीचिंग प्रैक्टिस का फर्स्ट डे मैंने 100% दिया मेरे हिसाब से। इसके बाद जो भी टीचिंग की 2-3 रिकॉर्डिंग हुई हमारे टीचिंग के दौरान, वो भी मेरा 100% मैंने दिया, उसकी बहुत अच्छी से तैयारी की मैंने। और मैं देखती थी चंद्रशेखर सर इतने हार्ड वर्किंग, इतना हमारे साथ साथ लगे रहते थे। मैं उनको देख देख के अपने अंदर एनर्जी लेती थी, और हम आपस में बात भी करते थे कि देखो, बाकी और टीचर्स तो जैसे और भी बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन सर हमारे साथ खड़े रहते थे हर चीज के लिए। हमारा जो पीरियड अरेंज कराना है या फिर और भी चीजें हैं, थैंक यू सर, उसके लिए मैं आज भी आपके लिए मतलब मैं बता नहीं सकती कि आपका जो टीचिंग स्टाइल था सर, एक दिन मतलब मैं सोच में पड़ गई कि आपने जो हम आप संज्ञा पढ़ा रहे थे, और आपने इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया सर। मैं आज भी वो जो टेक्निक है, जो आपका तरीका है, वो आज भी मैं यूज करती हूँ। बेशक मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, हिंदी भी 1-2 पीरियड मुझे दिए जाते हैं, बट संस्कृत में भी मैं यही तरीका अपनाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने टीचिंग से बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसे लोग अच्छा। मिले। अच्छा जी। गीता, बहुत अच्छा लगा। कुछ इसमें जूम का है 5 मिनट का और इसमें टाइम बचा है, क्योंकि जो हम लोग जी। किए थे, तो एक दो प्रश्न ले लेते हैं हम लोग थोड़ा हाँ सा जी। जल्दी जल्दी। जो ठीक। बीएड में टीचिंग स्किल है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा आपके टीचिंग पर, जो आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? अगर आप देखा जाए तो माइक्रो टीचिंग या टीचिंग से आपके टीचिंग स्टाइल में परिवर्तन हुआ? जी, माइक्रो टीचिंग जो है सर, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि माइक्रो टीचिंग ही एक ऐसी टीचिंग है जिसमें स्टूडेंट्स अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकता है, और अपने टीचिंग का जो लेवल है, जितना मर्जी मतलब हाय हाय करते जा सकता है, कितना ऊंचा उठाए, वो एक माइक्रो टीचिंग का
एक तरह से समझ लीजिए कि एक अमृत का एक बूंद है, जो कि एक जो स्टूडेंट होता है ना, उसके अंदर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी को एक कूट कूट कर कहते हैं ना, जैसे भर देता है। वो चीज है माइक्रो टीचिंग, और वही चीज अच्छा। बना के रखना चाहिए, ताकि आपकी जो टीचिंग में है वो लेवल कभी भी चूकेगा नहीं फिर। जी। रोहिणी, एक प्रश्न है आपसे कि आप देखते हैं कि जो हम रिइंफोर्समेंट स्किल का प्रयोग करते हैं, क्या अगर हम उसका यूज न करें तो बच्चे के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? जी सर, मुझे लगता है कि आई एम फर्क ऑडिबल। पड़ेगा सर। जी। सर, आई एम ऑडिबल। जी sorry। हाँ, ऑडिबल। जी सर, बेसिकली रेनफोर्स रेनफोर्स स्किल सबसे मेन पार्ट है आपकी टीचिंग का, कि आपको स्टूडेंट्स को किस तरह मोड़ना है। और जितना अच्छा रेनफोर्स होगा, उतना ही अच्छा आपका ओरा आपकी क्लास में होगा। बेसिकली एक अगर ट्रेडिशनल व्यू बोला जाए, तो ट्रेडिशनल व्यू में क्या होता है कि जो अगर जो एक माइंड मेंटेलिटी चलती आ रही थी एजुकेशन में, कि जो बच्चे जवाब देते हैं हम उनसे ही पूछा करते थे बस। बट रेनफोर्स स्किल उन बच्चों को भी मौका देती है जो आता तो है लेकिन बता नहीं पाते, उनका रेनफोर्समेंट करना फिर से। गीता जी, गीता, इसमें जो हम एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, क्या जो एग्जाम्पल है उससे हमारे टीचिंग में फर्क पड़ता है? जो बच्चों को हम एग्जाम्पल देते हैं, चाहे हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, विशेषण पढ़ा रहे हैं, तो क्या अप्रोप्रिएट अगर एग्जाम्पल है तो टीचिंग पर इफेक्ट पड़ता है, या बच्चों को में सीखने में चेंजेस आते हैं? 100% सर, एग्जाम्पल्स तो बहुत ही जरूरी हैं। अगर एग्जाम्पल्स का हम इस्तेमाल ना करें ना, तो बच्चे को हम एकदम एग्जैक्टली हम समझा ही नहीं सकते। ठीक एग्जाम्पल्स तो ठीक बहुत है, जरूरी है समझा। सर। जी। अ, गीता, एक प्रश्न था कि जब एक नॉन बीएड टीचर और एक बीएड टीचर, एक ट्रेन टीचर होता है, एक अनट्रेन टीचर होता है, तो दोनों में हम देखते हैं कि क्या आपको चेंजेस मिलता है स्कूल और कॉलेज में? क्योंकि आप लोग भी 10 से 12 साल हो गया आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप 2014 से पढ़ा रहे हैं, 2024 आ गया, 10 साल के आपके पास जी। एक्सपीरियंस, उससे पहले आपने टीचिंग किया था। तो जो जी। आपने बीएड किया और उसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मल आप डिग्रियां लेते हैं, थ्योरेटिकल तो करते हैं, लेकिन जो टीचिंग स्किल है, एक तरीके से आपको जो ट्रेनिंग दी गई माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन टीचिंग या टीचिंग प्रैक्टिस के माध्यम से, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा जो एक्चुअल क्लासरूम में जब आप जिस क्लास को पढ़ाने के लिए जाते हो, चाहे आप 6 to 8 को या 9 to 10 को, तो उस टीचिंग स्टाइल से, टीचिंग स्किल से क्या फर्क पड़ा आपको? हाँ सर, बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि एक नॉन बीएड जो टीचर होता है, अनट्रेन्ड टीचर होता है, ठीक है, टीचिंग तो कर रहा होता है, लेकिन एक प्रोसेस जो है जहां पर कैसे स्किल्स का यूज करना है, या फिर कैसे एग्जाम्पल्स लेने हैं, टीचर्स उस चीज को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाते। क्योंकि मैं नॉन बीएड रह चुकी हूँ, मैंने पढ़ाया है नॉन बीएड होके, तो मैं इस चीज को अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि जब मैं नॉन बीएड थी और मैं टीचिंग कर रही थी ना, तो मेरे अंदर इतनी बौखलाहट रहती थी कि मैं नॉन बीएड हूँ, मैं ट्रेंड नहीं हूँ, मुझे एक प्रोसेस है वो नहीं पता। मैं ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, बट मैं पॉलिश नहीं हूँ, है ना। तो कहने का मतलब, हम रोज कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर कपड़े में प्रेस किया हो रहता है, तो वो कपड़ा एक एलिगेंट लुक देता है, एक पर्सनालिटी को कितना अच्छा निखार देता है। जबकि हर एक चीज जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, उसके तरीके में एक डिसेंट तरीका क्या होता है, वो जब हम ट्रेंड होते हैं तभी हमें पता चलता है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं पढ़ाने कि जैसे सब्जी में या दाल में अगर हम नमक न डालें, कितनी भी अच्छी सब्जी या दाल जी। जी। बनी हो, अगर नमक नहीं है तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। वही रोल बिल्कुल एक तरीके से जो स्वाद। टीचर ट्रेनिंग की है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस के लिए, क्योंकि लगता है कि बिना उसको अधूरा है, आप ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कपड़े तो हर कोई अ, पहनते हैं, लेकिन रोनी तरीका होता है का। जी। जी वही है टीचर ट्रेनिंग। सर, रोनी, एक प्रश्न है कि बे- आप देखते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग का हम यूज करते हैं, बीबी राइटिंग या श्यामपट्ट कौशल का यूज करते हैं, तो आप देखते हैं कि बच्चों के लिए
वो कितना इम्पोर्टेंस होता है, या ब्लैक बोर्ड को अगर हम हटा दिया जाए, सामने से केवल टीचर लेक्चर दे, केवल एक्सप्लेन करें, केवल प्रश्न पूछे, अगर सामने ब्लैक बोर्ड नहीं हो तो क्या टीचिंग पर इफेक्ट पड़ेगा? सर बेसिकली अगर सिर्फ लेक्चर देंगे तो ओनली सबसे बोरिंग मेथड ऑफ टीचिंग अगर कहते हैं बच्चों के लिए स्पेशली स्कूल टीचिंग में आपके लिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल मस्ट है, क्योंकि आपके सामने जो बच्चे हैं, अगर आपके लिए स्किल बच्चों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को इन्वॉल्व रखना है आपने। ब्लैक बोर्ड क्या है, बेसिकली स्टार्ट ऑफ टीचिंग है, स्टार्ट ऑफ क्लास है आपके लिए, उसमें डेट से लेकर आपकी क्लास से लेकर आपके टॉपिक तक बेसिक बच्चों को इन्वॉल्व करना होता है। और कभी कभी नोटिस करते हैं कि अगर आपने ह्यूमन एरर सबके साथ हो सकती है। आपने अगर राइटिंग में गलती कर दी तो बच्चे आपको पकड़ लेते हैं। इसलिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने कभी क्योंकि हमेशा यही होता है जब हम पहली बार माइक्रो टीचिंग में जाते हैं, तो जब हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल आती है तो अक्सर अक्सर हम ये पाया करते हैं कि हमारी लाइन सीधी नहीं जाती, हम डेट जी लिखना भूल गए, हम टोटल स्टूडेंट लिखना भूल गए। तो इस चीज को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही प्रैक्टिस से उतनी ही ज्यादा हमारी स्किल बढ़ जाती है। और बच्चों कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को क्लास में आपको क्लास को टीच भी करना है, पढ़ाना भी है, और आपको अपना काम भी करना है। तो तब भी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल काफी काम आती है, क्योंकि हम बहुत से छोटे बच्चे जब होते हैं 6-7 क्लास के बच्चे, उन्हें हमें बोर्ड पर ही राइट डाउन करवाना पड़ता है। बहुत सारे वर्ड गीता ऐसे होते हैं, जी, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और लिखने में अलग होते हैं, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड होना कंपलसरी है और जरूरी है। इसके बिना टीचिंग अधूरी अधूरी लगती है। गीता, एक प्रश्न है आपसे कि आप एक 9th-10th के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और एक छोटी क्लास के बच्चे 4th-5th को पढ़ा रहे हैं या 6th को पढ़ा रहे हैं। आप देखते हैं कि क्या सेम मेथड दोनों के यूज करते हैं, या उनका मेंटल लेवल, उनका एज ग्रुप देख के आप टीचिंग स्टाइल या पढ़ाने के तरीके उसमें आप परिवर्तन करते हैं? जी बिल्कुल, दोनों बच्चों का लेवल देखना होता है कि अगर मैं क्लास 5th को पढ़ा रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा पेशेंस या बहुत ही धीरज की जरूरत पड़ती है, और हमें अपने सारे स्किल्स को कब कहाँ कैसे यूज करना है, कैसे एग्जाम्पल्स देने हैं, ये बहुत मायने रखता है एक क्लास 5 और एक क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए। जबकि क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा उसमें वहां भी जरूरत है, एग्जाम्पल्स की जरूरत है, लेकिन आप थोड़े में ज्यादा समझा देते हो 9th एंड 10th के स्टूडेंट को। जबकि जो क्लास 5th और 6th का जो स्टूडेंट होता है, आप इतना बताओगे तो वो इतना ही समझ पाते हैं, है ना। तो उसके लिए जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, वो हमें इस बात को ध्यान में रख के लेना होता है कि जो हमारे जो लेवल है, हमारे सामने जो बच्चा है, उस चीज को वो किस तरह से टेक ओवर करेगा, किस तरह से समझेगा, है ना। उस लेवल पे हमें जाना पड़ता है कि अगर मैं ऐसे बता रही हूँ तो क्या मेरे बताए हुए शब्दों को या बातों को एग्जैक्टली वही चीज बच्चा ले रहा है। अगर नहीं तो मैं तो फेल हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बता पा रही हूँ, मतलब मेरा मेरा तो टीचिंग खराब है, बिल्कुल बेकार है। तो वो लेवल हमें ध्यान रखना होता है। जैसे मैं बीइंग अ टीचर, मैं बता रही हूँ कि मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, और सबके दिमाग में ये है कि बहुत टफ है संस्कृत। तो अब आप सोचिए कि मेरे लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा। तो मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्लास 5th संस्कृत पढ़ाती हूँ, मैं जीरो यानी कि केजी लेवल को लेके जाती हूँ। वहां पर आप ये समझ लीजिए कि मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं ये समझती हूँ कि मेरे सामने केजी का बच्चा बैठा है, और उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ। तो दोनों के लेवल में अंतर है, बेशक दोनों बच्चे हैं, लेकिन बच्चे जो हमारा स्टैंडर्ड है, बच्चे का जो स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको एग्जाम्पल्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ाते हैं। और ये हमारा एक, मुझे लगता है कि एक सफल टीचर जो होते हैं, ये सबसे एक बहुत जैसे कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। जी रोनी, एक प्रश्न है कि आप देखते हैं कि जो छोटी क्लास होती है या बड़ी क्लास होती है, हम देखते हैं कि चार्ट और मॉडल या ऑडियो विजुअल एड का हम यूज करते हैं,
वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या केवल लेक्चर मेथड के लिए इम्पोर्टेंट है? तो मतलब क्या है, अगर हम कोई शिक्षक सहायक सामग्री के द्वारा उनको कोई चीज समझाएं, एग्जाम्पल दें और टीच करें, या केवल हम लेक्चर मेथड या क्वेश्चनिंग स्किल के द्वारा बताएं, तो क्या कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए अ, महत्वपूर्ण होता है? सर शिक्षण सामग्री तो हर क्लास के लिए जरूरी होती है बेसिकली, लेकिन छोटी क्लासों में उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे पहला आई हमारी जो एजुकेशन स्टार्ट होती है हमारे आई कांटेक्ट से स्टार्ट हो जाती है। हम किसी चीज को हम लेक्चर में बता देते हैं और उसे हम दिखाते हैं प्लेकार्ड्स में, बोर्ड्स पे, ठीक है, तो उससे ज्यादा बेहतर बच्चा सीख पाता है। अगर हमने बच्चे के सामने लाइव एग्जांपल रख दिया, बच्चों को जैसे सर आपने पढ़ाया था टीचिंग के टाइम पर, संज्ञा पढ़ाई थी, पेन हाथ में है, फैन टंगा हुआ है, स्टूडेंट सामने है, प्लेस है स्कूल, तो उन एग्जाम्पल को, जो हमारी चीजें आसपास है, हम उनको भी अपना कहते हैं टीचिंग एड्स बना सकते हैं। साथ के साथ मैक्सिमम अगर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हर चैप्टर में कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, तो हम उन्हें बच्चों को बड़े पेपर पे शो करके दिखा सकते हैं कि उन वर्ड्स को लिखकर कि कैसे लिखें। एंड रोनी, लग रहा छोटे है कि बच्चों अभी में 10 ये साल पहले गीता को भी एग्जाम्पल नहीं भूल रहे हैं, और रोनी भी 2019-21 से 5 साल पहले भी दिए थे, 4 साल। जी जो एग्जाम्पल दिया गया है माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन टीचिंग या टीचिंग प्रैक्टिस में, हमको लग रहा है, वो लग रहा है कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जो लगता है पूरे लाइफ टाइम वो उदाहरण उस बिल्कुल स्किल के लिए लगता है भूलेगा नहीं। जी जी सर। और सर सर एक और चीज थी, जैसे जब हम टीचिंग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो मुक्ता मैम ने, जब मुक्ता मैम पढ़ाती थी, तो मुक्ता एक चीज खास थी कि हम, मैम ने एक चीज बोली थी कि आसपास जो भी बच्चा है उस एज ग्रुप का, अगर हम 0 to 3 ईयर पढ़ रहे हैं, 3 to 6 पढ़ रहे हैं, 7 to 14 पढ़ रहे हैं, तो उस बच्चे को अपने सामने ले आइए बस। आपकी हम्म टीचिंग साइकोलॉजी बहुत सबसे इजी हो जाएगी। कि बहुत जितनी भी सच थ्योरी है, प्याजे की थ्योरी हो गई, ठीक है, जितनी भी थ्योरी है, सारी थ्योरी आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी, और आप टीचिंग साइकोलॉजी में सीटेट में 30 out of 30 ला सकते हैं आराम से, अगर आपने एज ए टीचर पढ़ा। और अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप एज ए हम्म टीचर सोच के एग्जाम देते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया बच्चे को, और ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो हम उसे भूलते नहीं हैं कभी भी। तो जी बहुत अच्छी बिल्कुल बात है कि अभी आज तक जो हमारे हमारे एलुमनाई है, जो एग्जाम्पल दिए गए टीचर ने क्लास में दिए या पढ़ाते समय दिए या माइक्रो टीचिंग में दिए, और आज तक उनके मेमोरी में वो बना हुआ है, बहुत सारी चीजें मेमोराइज होता है, टारगेटिंग होता है, भूलते रहते हैं। स्मृति और विस्मृति दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना याद रखना जी जरूरी सर है उतना भूलना ही जरूरी है, लेकिन वो चीजें, वो एग्जाम्पल, वो क्लास, क्योंकि उसके बाद पता नहीं वो 5 साल 6 साल तक कितनी क्लास को पढ़ाए होंगे, कितने स्टूडेंट को पढ़ाए होंगे, अलग अलग सेक्शन को पढ़ाए होंगे, लेकिन वो जी बीएड के दौरान जो उनको एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत बड़ी चीज होती है कि वो आज भी याद है, बहुत अपने आप बड़ी में बहुत बड़ी चीज है। जी सर जी क्योंकि सर अप्लाई क्योंकि सर साथ के आपको साथ अप्लाई भी शायद करते याद हैं। होगा सर, शायद आपको याद होगा कि उस दौरान सारे जो स्टूडेंट्स थे एक ही टॉपिक एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, लेकिन जो मेरा टॉपिक होता था, आपको भी याद होगा शायद, हमेशा अलग होता था। तो एक लास्ट टीचिंग बची थी और मैं परेशान थी कि मुझे मुझे किसी से कोई कॉपी नहीं करनी, मुझे अपना एक यूनिक टॉपिक लेकर आना है। बहुत सोचा मैंने। एक्चुअली मैं उस समय मेरे घर पे कुछ 9th के स्टूडेंट आते थे, तो उनकी हिंदी की निबंध की बुक देखी मैंने, उसमें सिनेमा लिखा हुआ था, है ना, सिनेमा के ऊपर था। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, सिनेमा। तो मैंने इसको ढूंढा और फिर मैंने सारी चीजें कलेक्ट की कि मुझे सिनेमा निकालना कैसे, टॉपिक पर मैं आऊंगी कैसे। वो सारी गिल्ली डंडा, बाइस्कोप और कंचे, पता नहीं क्या क्या, है ना, और कठपुतली, सर हो सकता है मेरी कठपुतली आज भी रखी होगी जो मैंने सबमिट कराई थी टीचिंग एड में। अभी अभी भी तो अभी भी है गीता आपकी कठपुतली यहाँ पर। बदले जी रखिए। तो ये सारा करके फिर मैंने अपने हाथ से ही ड्राइंग बनाई थी, जिसमें कि मैंने बहुत सारे मूक फिल्म थे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स थे, सब कुछ चीजें मैंने कर करके टॉपिक पर मैं बच्चों के जबान पे लाना चाहती थी कि जो मेरा टॉपिक है वही एग्जैक्टली वही जबान पे आ जाए उनके। और बाय गॉड
सर सेम वही टॉपिक बच्चों ने एकदम से बोला कि आजकल का क्या है, सिनेमा लेकर आया, और उस दिन मैं आंसू आ गए सर मेरे आंखों में। वो जो मेरा टीचिंग का जो फाइनल प्रैक्टिकल था, और तो देखिए, वो एक चीजें होता है कि बहुत मिस कर। जो जी जो डिफरेंट टीचिंग स्किल बताई गई है, ये सिर्फ जी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो प्रस्तावना कौशल होती है। प्रस्तावना कौशल में जी यही बताया जाता है कि आपको किसी चीज का इंट्रो कैसे जी जी करना है, स्टार्ट कैसे करना है। जी सीधे आपको जी टॉपिक नहीं लिखना है, तो आपको समझ में आ रहा है कि उसकी वैल्यू जो आपको बताया गया आज आपके जीवन में, आपके टीचिंग में कितना उसका इंपॉर्टेंट है। और कुछ जी बच्चे बिल्कुल। वाकई यूनिक तरीके से, जैसे गीता की बात करें या रोनी की बात करें, ये बहुत जो अच्छे बच्चे होते हैं और एकदम सबसे अलग करने का एक जज्बा होता है कि नहीं, हम सबसे यूनिक करें और सबसे अलग। ऐसा नहीं, कॉपी करने वाली बात नहीं कि किसी का नकल करने पूरा हो जाए, ये नहीं। जी पढ़ाना तो सबको है, लेकिन हम बीट कर रहे हैं तो सबसे अलग बिल्कुल। तरीके से करेंगे। ये वो चीज इन लोगों में थी। और आज वो समझ में आ रहा है कि जो शब्द निकल रहे हैं और 14 10 साल 12 साल पहले वाले हकीकत में निकल रहे हैं, क्योंकि आज तो लोग भूल जाएंगे 10 साल पहले क्या हुआ था, 12 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन जब आप सही तरीके से किसी चीज को करते हैं, और आपका एक एक दिन जो बीएड का होता है, इन्होंने जब किया अभी 1 साल का था गीता के टाइम में, 2013-14 बैच था, तो बीएड 2 साल का हो गया, और 1 साल में हाँ सर, बहुत लगता है कि लकी लकी थे हम क्योंकि 2 साल के बच्चों को जितनी मेहनत टीचिंग कराई मैंने जाती है एक उससे साल ज्यादा। के लिए कुर्बान, जी सर, कुर्बान कर दी थी कि मतलब ठीक है, अगले साल से मुझे एज अ बीएड टीचर, एज अ ट्रेन टीचर मेरे को टीचिंग करनी है। और मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। वो इवन उन्होंने ये कहा था आपको टीचिंग छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते। मैंने कहा नहीं, मुझे ईमानदारी से करनी थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ जी दी थी, तो मुझे वो चीज चाहिए थी रेगुलर उस बेस पे, तो नहीं इसलिए। तो सर, इसीलिए हम बाकी सर ऐसे अलमनाई। हाँ हाँ, 1 मिनट। सर एक चीज इसीलिए बस हम। हम कहना चाहते हैं, थोड़ा सा, हाँ कि जो मेरे माइंड में अभी है तो मैं कह देता हूँ बाकी सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए, कि हो सकता है आप सबका टॉपिक सेम हो, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हाँ बिल्कुल। कौन सा आप किस बच्चे का, किस टीचर का किस टॉपिक पर ज्यादा कमांड अच्छी है, और किस तरीके से उन बच्चों के बीच में उस टॉपिक को रखते हैं, तो बच्चों के माइंड में जाता है। और इसके साथ साथ आज की टीचिंग में आपको टेक्नोलॉजिकल फैमिलियर होना पड़ेगा। आपको गूगल सीट, बिल्कुल। एक्सेल, प्रेजेंटेशन, आपको सब कुछ आना चाहिए सभी बीएड टीचर्स को। क्योंकि आज जब हम आते हैं तो हर एक चीज के लिए गूगल सीट आ जाती है। सारा डाटा हमारा गूगल सीट में हम्म है। हमारा पूरा रियल बिल्कुल का एक है। सॉफ्टवेयर है अलग से। अब मैनुअली काम बंद हो चुका है स्कूल्स में, अब सब काम सॉफ्टवेयर पे होते हैं। इसलिए अपनी टीचिंग स्किल्स के साथ साथ अपनी टेक्निकल स्किल्स पे भी काम कीजिए, बिल्कुल। एक्सेल से लास्ट लेकर जो हमारी सॉफ्टवेयर तक। जो क्योंकि मीटिंग आप हुई थी तो सर, उसमें जी जी अ, जी बिल्कुल यही सही बात है। मेरा कहना है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी पर काफी काम कीजिए, प्रोजेक्ट भी है। हम्म और क्लास में हमारे लिए पूरी क्लास लीडर होती है, लेकिन उन लीडरों का भी एक लीडर चुनना होता है हमें, जिसे हम क्लास मॉनिटर कहते हैं। तो ये हमें होता सर ने एक एक्टिविटी में सिखाया था। सर आए और सर बोले कि आपके पास 10 मिनट है, आपके पास 10 मिनट है गिनती की, और आप सबको अपने अल्फाबेटिकली बैठना है, बिल्कुल सीक्वेंस में। तो फिर हम हम्म। 5 मिनट सोचा, फिर किसी ना किसी को लीड लेना था, तो हम दो स्टूडेंट्स ने सोचा कि बिठाना शुरू करते हैं। फिर बिठाया सर ने फिर बताया कि ये आपको क्लास का मॉनिटर सेलेक्ट करने में आपके काम आएगी स्किल, आपका लाइन मॉनिटर, डिसिप्लिन बिल्कुल। मॉनिटर सेलेक्ट करने में काम आएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी स्किल्स सिखाई थी। क्योंकि सर की क्लास में थ्योरी के साथ एक्टिविटी जरूर होती थी, हर 3 दिन बाद एक एक्टिविटी होती थी, जिससे हमारी लर्निंग्स बढ़ जाती थी स्पेशली। बिल्कुल जरूरी होती है एक्टिविटीज तो, क्योंकि और टेक्नोलॉजी एक प्लस तरह से एक्टिविटी। कहते हैं ना, माइंड को शार्प करती है एक्टिविटीज। क्योंकि माइंड पे एक इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का, सब कुछ का, तो एक्टिविटी क्या होती है, माइंड को एक रिफ्रेशमेंट देती है। और वो रिफ्रेशमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, सभी के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, बीएड स्टूडेंट और टीचर्स के लिए भी। इवन कई किसी के लिए स्कूल्स खेल में खेल। टीचर्स के लिए जो एक्टिविटीज होती है, हाँ जी, वो भी बहुत जरूरी होती है। और हर टीचर्स उसमें पार्टिसिपेट, जिसको हम वर्कशॉप का नाम लेते हैं, हम वर्कशॉप बोलते हैं,
वो एक तरह से यही चीज है। और वो चीजें जो होती है, टीचर्स के लिए वर्कशॉप बहुत जरूरी है। हर टीचर को वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। उससे क्या होता है, हम हर किसी को जानते हैं, हर किसी के टेक्निक को समझते हैं। जरूरी नहीं है सब एक ही तरीके से पढ़ाएं। हर चीज जो टॉपिक ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है उसी टॉपिक में, कोई कोई ले रहा है कुछ ले रहा है, तो वो टॉपिक एक होते हुए भी फिर भी वो अलग हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां तक मैंने सीखा है अपनी टीचिंग से। जी। अ, गीता, और भी बच्चों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो हमारे करंट स्टूडेंट हैं, तो वो अपने टीचिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट करें कि आगे लीड करके निकले, तो उनको उनके लिए ज्यादा अच्छा कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें तो बच्चों को आप कुछ दे सकते हैं। हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ हर बीएड स्टूडेंट को, कि जो हमारा जो भी है पढ़ने का सब कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस आता है, जैसे माइक्रो टीचिंग होती है, आप उस पे पॉलिश हो सकते हैं। आप अपने आप को उसमें निखारिए और जितना आप कर सकते हैं उतना पूरी काम से करिए। आगे और रहेंगे। उसमें से जो टॉपिक आप लेते हैं उस टॉपिक को निखारिए। और आपस में, मैं तो शीशे के सामने करती थी, मेरे पास कोई होता नहीं था घर में। जब मैं माइक्रो टीचिंग हमारी चलती थी तो मैं घर में पहले प्रैक्टिस करती थी शीशे के सामने। जैसे कि आप सर, आपने भी, चंद्रशेखर सर आपने भी और त्रिपुरेश सर ने भी बताया था कि अपने आप को ऐसे पॉलिश करना चाहिए। तो माइक्रो टीचिंग तो है ही बेस्ट, है ना। वो चीज, स्किल्स कहाँ पर किस तरह से यूज करना है वो चीज, एक्टिविटीज, आपको बच्चों के लिए एक्टिविटीज निकाल कर रखनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग बहुत मस्त है, बहुत ही जरूरी है स्टोरी टेलिंग। ठीक है। और हर एक क्लास में टीचिंग के दौरान ही आप एग्जाम्पल्स जो लाते हैं उसमें एक स्टोरी तो जरूर होनी चाहिए, जिससे कि वो टॉपिक से रिलेटेड हो और वो बच्चा परफेक्टली उस चीज को अंडरस्टूड कर पाए। और अपना जो भी उस दौरान जो भी उनका चल रहा है, मतलब कार्यक्रम चल रहा है, जो भी प्रोग्राम वो कर रहे हैं, वो एकदम डेफिनेटली 100% दे पाएंगे। जी। सरिता मैम, तो कोई So अ, now I would like to invite Dr. C.S. Yadav, sir, Dean, IMT College of Science and Technology, for vote of thanks. Over to you, sir. अ, हाँ मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑडिबल मैम। सर। हम्म, दरअसल मैम, वोट ऑफ थैंक लिए, क्योंकि मैं अगर आभार शब्द कहूँ, धन्यवाद शब्द कहूँ, तो वो बहुत छोटा लगता है इन स्टूडेंट के लिए, हमारे अलुमनाई के लिए, क्योंकि जितना सहज अभी हमने 2 दिन पहले बोला गीता से कि आप क्योंकि एस्टर स्कूल नॉलेज 5 में टीच कर रही हैं और रोनी दिल्ली में है, तो अलुमनाई मीट में तो गीता नहीं आ पाई थी क्योंकि स्कूल काफी व्यस्तता थी। रोनी यहाँ आए भी थे और इनको कॉलेज ने सम्मानित भी किया था बच्चों के सामने, जो हमारे पुराने अलुमनाई है। इन्होंने क्योंकि सहज हमारा जो निमंत्रण था एक्सेप्ट किया, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी आप लोग 3 बजे जब यहाँ से जा रहे थे तो 3 बजे से अलुमनाई कनेक्ट है, कोई बस में है, कोई रास्ते में है, 3:15 पर पहुंच रहा है। उसके बाद भी मालूम है कि आप लोग जिस ड्रेस कोड में आए हो घर कॉलेज से, अभी इसके पहले भी आप लोग बहुत बड़ी चीज है कि आपने कॉलेज के लिए इतना टाइम दिया। और जो हमारा टॉपिक था, हाउ टू यूज टीचिंग स्किल इन बीएड कोर्स, हम टीचिंग स्किल को कैसे यूज करते हैं, हमारे जो करंट स्टूडेंट है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर है, हमारे एलुमनाई है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों ने जो बताया, सैद्धांतिक चीजें तो मिल जाती है, थ्योरेटिकल मिल जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है वो भी टीचिंग के दौरान तो चलिए ठीक है, जब आप एक्चुअल में जॉब करते हैं, वहां जब आप रियल क्लासरूम में बच्चों को फेस करते हैं, चाहे वो छोटी क्लास है, बड़ी क्लास है, और आप लोग के पास 10 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही उपयोगी होगा अगर आप अपने जीवन में इसको लागू करना चाहेंगे। क्योंकि आप लोग बड़ी भी क्लास पढ़ाते हो, छोटी भी क्लास पढ़ाते हो, तो इसका कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमारे बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और आगे हमें उम्मीद करते हैं कि आगे कॉलेज कुछ भी ऐसे प्रोग्राम कराएं तो आपको उसमें मौका जरूर मिलेगा। और आप लोगों ने समय दिया, एक बार पुनः आप दोनों को फिर से जी धन्यवाद। सर, और अपनी बातों थैंक के यू सर। जरिए जी, हाँ, मैं अपने आप अपनी को बातों बहुत के गर्व, तरीके जी बहुत मैं आभारी समझती हूँ। और बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आप जैसे टीचर्स की छत्र छाया में मैंने किया, जबकि मैं बहुत होपलेस हो जाती थी। और सर, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ। और देखिए आज भी कॉलेज। जब मैं उस दिन आ नहीं पाई थी तो मैं बहुत दुखी थी कि मैं आ नहीं पाई थी।
लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूंगी। और थैंक यू सर, आपने मुझे ठीक है। हम थैंक सभी को यू सर। एक्चुअली। हाँ, और मैं एमडी सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के, क्योंकि उनका जो विजन है, जो मिशन है कॉलेज का, कि जो हमारे स्टूडेंट हैं केवल एडमिशन तो हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं कि उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। और क्लास तो सभी लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को डिग्रियां बांटते हैं, लेकिन जो बीएड का करिकुलम है, जो उसके पार्ट है, जो एक्टिविटी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एडमिशन कम होता है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास जो बच्चे आए हैं उनको जो उनका मेन मोटो है कि एक टीचर ट्रेनिंग लेके हम निकल रहे हैं, और एक सर का हमेशा से रहा कि बच्चों के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो बहुत अच्छी चीज है कि सर के दिशा निर्देश में, सर की मोटिवेशन में मिलता रहता है हम लोग कराने के लिए। और मैं डायरेक्टर आईएमटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर पूनम पांडे मैम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैम ने जो हम लोगों की जिम्मेदारी दी है, और मैम के ही लीडरशिप में, क्योंकि एक तरीके से आप देखते हैं कि जो नेतृत्व में कॉलेज चल रहा है, और मैम बहुत अच्छी तरीके से एक सबको लेके साथ में चलना, और बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, टाइमली कोर्स कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं, बच्चों की टीचिंग हो रही कि नहीं, बच्चों मैम का प्रॉपर इस तरीके से भी रहता है। जो भी फैकल्टी मेंबर हैं, सरिता मैम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों से कनेक्ट होना, बात करना, कल कि किस तरीके से क्या है, थोड़ा सा गाइड करना। और हम अपने जो मेघा मैम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेघा मैम भी इसमें जुड़ी हुई है, और जो तरीके से हमारा डिजिटल वेब का है मैम देख रही है। तो क्योंकि आप देखते हैं जो कोई दिल्ली से जुड़ा है, कोई नोएडा से जुड़ा है, ग्रेटर नोएडा कहाँ है, और आज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर ये डिजिटल नहीं होता तो हो सकता है कि शायद ये अलमनाई आज का जो हुआ, रोनी और गीता, शायद हो सकता है प्रॉब्लम होती है यहाँ पहुंचने में, शायद किसी दूसरे को हमको जोड़ना पड़ता है जो जी लोकल होता है, क्योंकि आप लोग आने में असमर्थता जताई थी, क्योंकि आप लोग 3 साढ़े 3 बजे आपकी छुट्टी होती है, इसलिए आज ऑनलाइन या डिजिटल जो मीडिया है उसी के कारण कोविड जैसे ही एक तरीके से क्रांति टाइप आ गई। जी पहले बिल्कुल। यूज होता था, लेकिन कोविड टाइम से ज्यादा हुआ जब क्लासेज ऑफ हुई, जब सब कुछ ऑनलाइन हुआ। और मैं अपने जो स्टूडेंट हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप देखते हैं अगर वक्ता कितने भी अच्छे हो, अगर श्रोता नहीं हो तो उस प्रोग्राम का कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं होती है। और हमारे जो स्टूडेंट है बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, बिना किसी डिस्टर्बेंस के इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे लिए ही प्रोग्राम किया गया है, और बहुत नॉलेजेबल है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ये कर चुके हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे एलुमनाई हैं, हमसे 10 साल पहले बीट किए हैं, तो उनको मालूम है कि इससे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो मैं उन अपने बच्चों को भी, अपने छात्रों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इसमें अपना जुड़े हुए हैं और बहुत पेशेंस के साथ इसमें सुन रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम अपने जो अलुमनाई हैं, गीता शर्मा और रोनी गौतम, दोनों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक बार कहने के बाद बहुत सहजता से निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, और जो आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू यूज टीचिंग स्किल इन बीएड कोर्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। जी थैंक धन्यवाद। यू सर। एनी टाइम थैंक यू। सर।